بہت ہی مزے کی کہانی جس کا عنوان ہے چاچا تیز غم شادی میں گئے۔ کہانی سنیے۔ بیگم ہمارے کپڑے تیار کر دو، چاچا تیز غم کہتا ہے۔ چاچا تیز غم نے ایک شادی کارڈ لہراتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بیگم نے پوچھا۔ ایک شادی میں لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور میں شادی؟ ہاں بیگم، میں لاہور شادی میں جا رہا ہوں۔ شادی کس کی ہے؟ ضیاء اللہ صاحب کے برخوردار کی شادی خانہ آبادی ہے۔ چاچا تیز غم نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ ضیاء اللہ صاحب کے برخوردار کی شادی؟ یہ ضیاء اللہ صاحب کون ہیں؟ بیگم کی اس بات کو سن کر تیز غم نے کہا، میں ان کے بارے میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں۔ یہ پہلے کراچی میں ہمارے ہمسائے تھے، اب چند سالوں سے ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے۔ چند سال پہلے ہماری شادی کو 20 برس ہو چکے ہیں۔ ضیاء اللہ صاحب اس سے قبل آپ کے ہمسائے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ بیگم بحث مت کرو، بس میرے جانے کی تیاری کرو۔ کیا آپ لاہور اکیلے جائیں گے؟ کیا میں اکیلا لاہور نہیں جا سکتا؟ میں بچہ تو نہیں ہوں کہ اکیلا لاہور نہ جا سکوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو پھر تمہارے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ چاچا تیز غم بولتے چلے گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا لمبا سفر ہے، آپ اکیلے بور ہو جائیں گے، کسی کو ساتھ لے جائیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اصول کا بندہ ہوں، کارڈ پر صرف ایک بندے کا نام ہے، اس لیے شادی میں بھی صرف ایک آدمی ہی جائے گا اور اس کا نام ہے چاچا تت، میرا مطلب ہے تنویر احمد صاحب جائیں گے۔ ہمارے جانے کی تیاری کیجیے، چاچا تیز غم نے بادشاہوں کے انداز میں حکم دیا۔ چاچا تیز غم ادھیڑ عمر آدمی تھے، قد درمیانہ، جسم پتلا، ناک لمبی، چہرہ لمبا، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور تون نکلی ہوئی۔ ان کا شجرہ نسب ایک نواب صاحب سے ملتا تھا، اس لیے نئے زمانے میں بھی ہر وقت شیروانی پاجامہ اور پاؤں میں سلیم شاہی جوتا پہنے رکھتے تھے۔ بال سے بے نیاز اپنے سر کو چھپانے کے لیے سر پر جو ہے وہ ٹوپی رکھتے تھے۔ چاچا تیز غم کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ آباء و اجداد کی نشانیوں کے طور پر 2 نوکر جمن اور استاد گھر میں پائے جاتے تھے، دونوں بہت بطونی اور کامچور تھے۔ چاچا تیز غم ان کو اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ دونوں صرف روٹے کپڑے کے عوض ان کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ چاچا تیز غم کسی زمانے میں کاروبار کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی والد کی آنکھیں بند ہوئیں کاروبار بھی بند ہو گیا۔ والد نے والے وقتوں میں 3 مکان کرائے پر اٹھا رکھے تھے، جس سے ہر ماہ جو پیسے ملتے ان سے گھر کی گاڑی چل رہی تھی۔ چند برس قبل چاچا کو اپنے ننیال کی طرف سے کچھ ارضی زمین حصے میں ملی تھی، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چاچا تیز غم کے دماغ پر جس کام کے کرنے کا بھوت سوار ہو جاتا تھا، بس پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ضیاء اللہ کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملنے کی دیر تھی کہ چاچا تیز غم زور و شور سے شادی میں جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ شام کے وقت وہ اپنے تمام کپڑے اور جوتے چارپائی پر دیڑے گئے۔ اچکن اور پاجاموں کی رنگ بہت شوق تھے۔ ایک ایک اچکن کو آئینے میں پہن کر سامنے دیکھتے اور خود کلامی کرتے ہوئے کہتے، نہیں یہ اچکن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جب وہ سبھی اچکنوں کو دیکھ چکے تو سوچ میں پڑ گئے اب کیا کیا جائے۔ شادی میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی اچھی اچکن نہ تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ہانک لگائی، جمن و جمن ذرا بھاگ کر میرے پاس آ۔ وہ جمن ہی کیا جو ایک دفعہ بلانے پر آ جائے۔
अबे जमन, कहाँ मर गए हो? जरा मेरे पास आओ। जी 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 चाचा, क्या हुक्म है? जमन ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। जाओ देख कर आओ शीदी टेलर मास्टर की दुकान खुली है या नहीं। सरकार में यूं गया और यूं आया। ये कहकर जुम्मन बाहर जाने ही लगा था कि चाचा तेजगाम ने कहा, सरकार के बच्चे पूरी बात तो सुन लो। जी फरमाइए सरकार। शीदी टेलर मास्टर से पूछकर आओ, क्या वो परसों तक हमारी अचकन की सिलाई कर देंगे? देर मत लगाना, जल्दी से आना। ओ अच्छा, ओ क्या खूब फरमाया। देर मत लगाना, जल्दी से आना। वाह चाचा वाह। जम्मर वाह वाह कहते हुए वहां से रुखसत हो गया और रास्ते भर ये दोहराता रहा, देर मत लगाना, जल्दी से आना, जल्दी से आना। बशीर के होटल के पास जमन का एक दोस्त उससे मिल गया। वो अपने दोस्त से बातें करने में लग गया। चाचा तेजगाम ने शीदी टेलर मास्टर की दुकान देखने और जमन की तलाश के लिए फिर उस्ताद को भेजा, जो दूसरा मुलाजिम था। बशीर के होटल के पास जमन अपने दोस्त के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। उस्ताद को देखकर उसे फौरन याद आ गया वो किसी काम से आया है। थोड़ी देर बाद दोनों शीदी मास्टर के पास खड़े हो गए। मास्टर जी, जुम्मन ने इतना कहा तो शीदी ने दोनों की तरफ देखा। बोलो क्या बात है? वो चाचा ने पूछा है कि आप परसों तक इनकी अचकन की सिलाई कर देंगे। अगर चाचा 200 रुपये ज्यादा सिलाई देंगे तो मैं सिलाई कर दूंगा। जुम्मन और उस्ताद जब घर पहुंचे तो रात के 10 बज रहे थे। चाचा तेजगाम गुस्से से भरे तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे में टहल रहे थे। जुम्मन और उस्ताद को देखकर उनका पारा मजीद चढ़ गया। तुम लोग कहाँ मर गए थे? अगर हम लोग मर गए होते तो यहाँ कैसे आते? बको मत। तुम दोनों को जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? आपका काम बन गया है। शीदी मास्टर का कहना है कि 200 रुपये ज्यादा सिलाई देने की सूरत में वो अचकन की सिलाई कर देंगे। उस वक्त पैसे का नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। तनवीर अहमद वल अमीर अहमद शादी में जाएं और पुरानी अचकन पहन कर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उस वक्त हमें 2000 रुपये ज्यादा देकर भी अचकन सिलवाई करवानी पड़ती तो ये सौदा महंगा ना होता। मैं अपने प्यारे दोस्त सियाउल्लाह के साहबजादे की शादी में नई अचकन पहन कर जाऊंगा। चाचा तेजगाम जोशीले अंदाज में बोलते चले गए। दोनों बाद में अचकन की तैयारी के लिए शीदे मास्टर के पास गए। अचकन इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। इनकी बेगम ने दीगर सामान भी तैयार कर दिया। शाम के वक्त उन्होंने 10 तारीख की रेल की सीट भी बुक करवा ली। चाचा की तैयारी मुकम्मल थी। मुझे तो घबराहट हो रही थी कि आप इतनी दूर अकेले जा रहे हैं। बेगम ने कहा, घबराओ मत बेगम। चाचा ने फौरन कहा, मैं इसलिए घबरा रही हूँ कि इन दिनों हालात ठीक नहीं। मैं फोन करके आपकी खैरियत दरियाफ्त करती रहूंगी। चलो ये ठीक है। 10 तारीख को शाम 6 बजे ट्रेन ने लाहौर के लिए रवाना होना था। चाचा तेजगाम ने बड़ा सा अटैची केस सर पर रखा और सफरी बैग कंधे पर डाला तो उनकी 8 साला बेटी अरोज ने कहा, अब्बा आप मेरे लिए लाहौर से क्या लाएंगे? बेटा जो कहोगी मैं ले आऊंगा। अब्बा मेरे लिए प्यारी सी गुड़िया लाइएगा। अरूज बोली, ठीक है, लाहौर के अनारकली से अपनी बेटी के लिए प्यारी सी गुड़िया लाऊंगा। अब्बा मेरे लिए भी कुछ जरूर लाइएगा। 10 साला महमूद ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ लाऊंगा। मुझे देर हो रही है। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब घर वालों ने चाचा तेजगाम को घर से रुखसत किया। चाचा तेजगाम जब स्टेशन पहुंचे तो लाहौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नंबर 3 पर मौजूद थी। चाचा ने घर से निकलते हुए टिकट बैग की जेब में रख लिया था। चाचा ने घर से निकलते हुए जब बैग की जेब में टिकट रखा तो वहां आकर तलाश करने लगे। टिकट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी दोनों जेबों को चेक किया। ये टिकट कहाँ चला गया? क्या आपका टिकट चलता है? चाचा तेजगाम की बात सुनकर करीब खड़े एक शख्स ने लुकमा दिया।
चाचा ने उस शख्स को घूरा। मुसाफिर धक्कम पेल हो रहे थे, ट्रेन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मियाँ तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पे क्यों खड़े हो? एक बुजुर्ग ने चाचा को मुखातिब किया। बड़े मियाँ वो टिकट, क्या टिकट लिए बगैर आ गए हो? जाओ जल्दी से टिकट ले आओ। ये बात नहीं है। तुम फिर क्या बात है? मेरा टिकट मिल नहीं रहा। कहाँ गया मेरा टिकट? चाचा तेजगाम ने ये कहकर अटैची के सर से उठाकर नीचे रखा और बैग को इसके ऊपर रख दिया। इसी समय में चाचा का फोन बजने लगा। चाचा ने मोबाइल जेब से निकालकर नंबर को गौर से देखा और फिर मोबाइल को कान से लगाकर इतनी बुलंद आवाज में हेलो कहा कि पास खड़े हुए लोग हैरत से इन्हें तकने लगे। आप खैरियत से स्टेशन पहुंच गए हैं? बेगम स्टेशन तो खैरियत से पहुंच गया हूँ, मगर क्या? मगर ट्रेन का टिकट न जाने कहाँ गुम हो गया है। मेरे सामने तो आपने टिकट बैग की जेब में रखा था। हाँ बेगम याद आ गया, टिकट तो मैंने बैग की जेब में रखा था। तुम्हारा फोन करना तो मेरे लिए रहमत साबित हुआ। अच्छा अल्लाह हाफिज। ये कहकर चाचा तेजगाम ने फोन बंद कर दिया। बैग की जेब से टिकट लेकर चाचा तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़े। अब इन्हें बोगी नंबर 8 में सीट नंबर 25 की तलाश थी। सर पर अटैच केस और कंधे पर बैग रखे वो इधर उधर भागे जा रहे थे। आखिर वो बोगी नंबर 8 में दाखिल हुए। अपनी सीट का नंबर देखते हुए चाचा अटैच केस और बैग एक तरफ रखकर अपनी सीट पर बड़ा जमा हो गए। शाम 6 बजे के करीब ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हुई। सूरज गुरूब होते ही डब्बे में छोटे छोटे भरकी कुमकुमे रोशन हो गए थे। रात के वक्त चाचा ने बेगम के हाथ की बनी हुई बिरयानी से डिनर किया। खाना खाने के बाद चाचा को नींद ना आए, ये भला कैसे हो सकता है? जब नींद ने चाचा को ज्यादा तंग किया तो वो बर्थ पर जाकर सो गए। वो कुछ ही देर में खराटे भरने लगे। वो खराटे भर भर कर नींद के मजे लूटते रहे, मगर इनके खराटों से दूसरे लोग रात भर जागते रहे। कुछ मुसाफिरों ने चाचा के खराटों से तंग आकर इन्हें जगाने की भी नाकाम कोशिश की। सुबह के वक्त चाचा की आंख खुली तो सब लोगों ने इन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरा। हमसे क्या कसूर हो गया? आप लोग क्यों हमें इस तरह घूर रहे हैं? आपकी खासी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक आपको सोने का ढंग नहीं आया। मेरे सोने में भला क्या खराबी है? मैं दूसरे लोगों की तरह तो सोता हूँ। चाचा तेजगाम ने अपना दफा किया। लो भाई सुनो, ये दूसरे लोगों की तरह सोते हैं। मैंने जिंदगी भर ऐसे जोरदार खराटे नहीं सुने। तौबा तौबा, खराटे क्या थे? धमाके थे, धमाके। कोने में बैठे एक पहलवान ने कहा। मियाँ तौबा करो, हम और खराटे ये हो ही नहीं सकता। ऐसा रात भर हो चुका है, एक आदमी ने फौरन कहा। वो चाचा तेजगाम ही क्या जो हार मान ले। जब बहस तवील हो गई तो पहलवान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सच्चे हैं जबकि हम सब झूठे हैं। आपकी खौफनाक खराटों की वजह से मेरे कानों में अभी तक आवाज गूंज रही है। इतनी देर में चाचा तेजगाम के फोन की घंटी गूंजी। चाचा ने बटन दबाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से पूछा गया, महमूद के अब्बा क्या कर रहे हैं? वो खराटे, मेरा मतलब है खराटों पर गर्मा गर्म बहस जारी है। इसका मतलब है मुसाफिरों ने भी आपके खराटों की आवाज सुन ली है। बेगम बस भी करो, चाचा हल्की सी आवाज में बोल रहे थे, मगर उस वक्त तक तमाम मुसाफिर बेगम और इनके दरमियान होने वाली सारी बात सुन चुके थे। अब चाचा तेजगाम के पास सिवाय खामोशी इख्तियार करने के कोई दूसरा रास्ता ना था। चाचा को नींद तो उस वक्त भी आ रही थी, मगर वो इस खौफ से नहीं सो रहे थे कि कहीं दोबारा इन्हें खराटों की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। दूसरे दिन दोपहर के वक्त लाहौर पहुंचे तो चाचा तेजगाम सर पर अटैची केस और कंधे पर बैग डाले प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बाहर आए। सामान उठाने के लिए कई कुली इनकी तरफ बढ़े, मगर हर कुली को नाकामी का सामना देखना पड़ा।
स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शे में सवार होकर वो बुर्ज कॉलोनी की तरफ रवाना हुए। चाचा तेजगाम पहले भी कई बार ज़ियाउल्लाह के घर आ चुके थे, इसलिए इन्हें घर तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। गली में शादी होने के कोई आसार दिखाई ना देते थे। चाचा ने काले रंग के गेट के सामने जाकर बेल पर हाथ रखा तो अंदर से किसी खतून ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? मैं हूँ चाचा नहीं, मैं हूँ तनवीर अहमद, मैं कराची से आया हूँ। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर ज़ियाउल्लाह चाचा तेजगाम को गले लगा रहे थे। मेरा दोस्त, मेरा यार तनवीर अहमद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आए हैं। हमारे भतीजे की शादी और हम ना आए। चाचा तेजगाम ये कहते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अच्छा, तो आप शादी में आए हैं? ज़ियाउल्लाह ने चाचा तेजगाम को बगौर देखा। भाई मैं शादी ही में आया हूँ, चाचा तेजगाम बोले। क्या आपने कार्ड गौर से पढ़ा था? ज़ियाउल्लाह ने पूछा। कार्ड पढ़ा तो था, मगर बहुत तेजी में पढ़ा था। आप बताइए, क्या कुछ गलत हो गया है? हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत हो गया है। क्या मतलब? चाचा तेजगाम का मुंह हैरत से खुला हुआ था। सनाउल्लाह की शादी अगले माह की 10 तारीख को है और आप 1 महीना पहले ही शादी में आ गए हैं। आपको पहले भी कई बार समझाया है कि हर काम तवज्जो से किया करें, मगर आप हैं कि हर काम में तेजी दिखाते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो आपको चाचा तेजगाम कौन कहें? ज़ियाउल्लाह की ये बात सुनकर चाचा ने पहले शादी कार्ड और फिर दरवाजे में खड़े बच्चों को देखा जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, कैसी है हमारी स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।